جو پہلا حوالہ ہے وہ پیدائش کی کتاب ہے اور اس کا 15واں باب ہے اور 15ویں باب کی 13ویں آیت ہے۔ اس میں جب خدا اپنے بندے مقدس ابراہیم کے ساتھ عہد کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر خدا نے اپنے بندے سے یہ کہا کہ تیری اولاد ایک ایسے ملک میں جو ان کا نہیں ہے غلام ہوگی۔ وہاں پر جو عرصہ لکھا گیا ہے وہ ہے 400 سال۔ آئیے ذرا پہلے اس آیت مقدسہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ یہاں پر خدا اپنے بندے مقدس ابراہیم سے یہ کہتا ہے کہ تیری اولاد ایک ایسے ملک میں جو ان کا نہیں ہے 400 برس تک، جو یہاں پر عرصہ لکھا گیا ہے 400 برس، یعنی کہ 400 سال تک وہ غلامی میں گزاریں گے۔ اب ایک اور حوالہ جو کتاب مقدس میں موجود ہے، خروج کی کتاب کا 12واں باب اور 12ویں باب کی 40ویں آیت۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ اور یہاں پر آپ نے اس بات کو نوٹ کر لیا ہے کہ پہلے پیدائش کی کتاب میں خدا نے اپنے بندے مقدس ابراہیم سے کہا کہ 400 سال تک تیری اولاد غلامی میں گزارے گی۔ اب خروج کی کتاب کے 12ویں باب کی 40ویں آیت میں اس عرصے کو 430 سال بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو درمیان میں 30 سالوں کا فرق ہے، یہ کیوں ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ کلام مقدس میں 2 اور حوالوں میں بھی انہی باتوں کا بیان ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو 400 سالوں کا بیان ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب آپ گلتیوں کا خط پڑھتے ہیں اور اس کا 3واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو 430 سالوں کا بیان ملتا ہے۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو فرق درمیان میں 30 سالوں کا ہے ایسا کیوں؟ اس کے لیے ہمارے سامنے 3 آج وہ پوائنٹ ہوں گے یا 3 باتیں ہوں گی یا وہ 3 نکات ہوں گے جس پر کتاب مقدس کے مختلف علماء اتفاق کرتے ہیں، اور آج ہم ان تینوں باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ یہ جو درمیان میں 30 سالوں کا عرصہ ہے، یہ اصل میں جو ابراہیم کی نسل ہے اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ وہ 400 برس تک اس ملک میں، پہلی بات تو یہاں پر اولاد کا بیان ہے، پہلی بات، اور دوسری بات جو ملک یہاں پر لکھا گیا ہے جو ان کا نہیں ہے، ملک کا بیان ہے۔ یہاں پر کوئی خاص ملک مینشن نہیں ہے کہ یہ مصر کا ملک ہے یا پھر کوئی اور ملک ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر کچھ ایسے علماء ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو عرصہ ہے یہ صرف ملک مصر والا یہ والا عرصہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کا آغاز ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا آغاز اسحاق کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ باتیں آگے بڑھتی ہیں اور اس میں کچھ عرصہ اصل میں چونکہ وہ وہاں پر ملک کنعان میں آباد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کنعان کے میں جو عرصہ گزارا گیا وہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ جو مصر میں عرصہ گزارا گیا یہ بھی شامل ہے، اور کل ملا کر جو ہے یہ سارا جو عرصہ ہے یہ کل ملا کر 430 سال بنتے ہیں۔ بہت سے کتاب مقدس کے جو مفسر ہیں وہ اس بات پر بھی ہمیں متفق نظر آتے ہیں کہ اصل میں اس غلامی کا آغاز یا اس عرصے کا آغاز
उस वक्त से नहीं हुआ जब सारे के सारे लोग यानी कि जो याकूब की सारी औलाद है जब वो सारी वहाँ पर जाकर आबाद हो जाती है, बल्कि जो इसका आगाज़ है वो यूसुफ के साथ ही हो जाता है। क्योंकि हमें इस बात का पता है कि मुकद्दस यूसुफ पहले अपने भाइयों से और अपने बाप से और अपने सारे ख़ानदान से पहले, क्योंकि जब उसे उसके भाइयों ने बेच दिया और जब उसे बेचा तो वो पहले मुल्क मिस्र में पहुंच जाता है। सो उसका आगाज़ जो है बाइबल मुकद्दस के बहुत से जो मुफस्सिरीन हैं वो इस बात को बयान करते हैं कि असल में जो इस अरसे का आगाज़ है वो यूसुफ के वहाँ पर जाने ही से शुरू हो जाता है। पैदाइश की किताब के 37वें बाब में आपको ये लिखा हुआ मिलता है, 37वें बाब की दूसरी आयत में वहाँ पर यूसुफ की उम्र का जिक्र है कि उस वक्त वो 17 बरस का था जब उसके भाई जो हैं वो भेड़ बकरियां चराने के लिए गए हैं और फिर उसके बाप ने उसको भेजा है कि जाकर अपने भाइयों की खैर खबर दरियाफ्त कर, और फिर जो उसके भाई हैं किस तरह उसके खिलाफ मनसूबा बंदी करके उसे बेच देते हैं और वो गुलाम बनकर मुल्क मिस्र में पहुंच जाता है। और आप इस बात को किताब मुकद्दस के पैदाइश की किताब के 41वें बाब में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। जब मुकद्दस यूसुफ को फिरौन के सामने पेश किया जाता है तो उस वक्त जो उसकी उम्र वहाँ पर लिखी गई है वो है 30 बरस, कि वो 30 बरस का था जब वो फिरौन के यहाँ पेश कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि 17 बरस की उम्र में वो वहाँ पर गया है और 30 बरस की उम्र में वो फिरौन के सामने पेश कर दिया गया। तो वहाँ पर हम सब इस बात को पढ़ लेते हैं कि कैसे फिर वो मुल्क मिस्र का हाकिम बन जाता है और सारे का सारा इख्तियार फिरौन उसके सुपुर्द कर देता है और उस वक्त उसकी उम्र है 30 बरस। अब जब वो 17 बरस का है जब वो गया है, 30 बरस का है जब वो हुक्मरान बन गया है। अब यहाँ पर दरमियान में 13 साल हैं, यानी कि 13 साल उसे हो चुके हैं मुल्क मिस्र में गए हुए। 13 साल मतलब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 13 साल जो हैं वो यूसुफ ने कैद में गुजारे हैं, कैद में या फिर पोतीफार के घर में काम करते हुए उसने गुलामी की चूंकि हालत में गुजारे हैं। पोतीफार के यहाँ भी वो गुलाम है और जब वो कैद खाना में डाल दिया जाता है तो वहाँ पर भी आपको पता है कि उसकी हैसियत क्या है। सो 13 साल ये बन जाते हैं और उसके बाद जब वो 30 वर्ष का था हाकिम बन जाता है और वहाँ पर हमें पता है कि 7 जो साल हैं, अब यहाँ पर जो 7 साल लिखे गए हैं, 7 साल हैं वो जब फसल बहुत ज़्यादा हुई और 7 साल वो हैं जब काल पड़ा है। अब ये दोनों मिलाकर ये 14 साल बन जाते हैं। 14 साल, 13 साल ये हैं जो उसने कैद की हालत में गुजारे। अब 7 साल फसल हुई है, 7 साल काल पड़ा है, 14 साल ये हो गए हैं। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे 27 साल, यानी कि 27 साल का ये अरसा है जो अब वहां पर यूसुफ को रहते हुए हो गया है। अब फर्क रह गया है, यहां पर लिखा गया है 430 साल। इसका मतलब यह है कि जो 3 साल हैं वो अब कहां हैं। ये 14 साल तो ये हो गए, 13 साल ये हो गए वहां पर यूसुफ को आए हुए, और 27 साल तो उसे हो गए, लेकिन ये 3 साल और इन 3 सालों के हवाले से जो किताब मुकद्दस के कुछ उलमा हैं वो इस बात पर भी मुत्फिक हैं कि असल में ये जो 3 साल हैं इसके बारे में 2 बातें बयान की जाती हैं। 2 बातें हैं इसके बारे में जो बाइबल के माहिर लोग बयान करते हैं, और उनमें से जो पहली है वो ये है कि ये जो 3 साल हैं ये असल में तैयारी चलती रही है फसल को संभालने के लिए। जब 7 साल बहुत ज़्यादा फसल हुई है तो पहले जो 3 साल हैं ये तैयारी में गुजरे हैं। उस तैयारी में आपको पता है कि फिर जब बहुत बड़े बड़े गोदाम चाहिए थे इन सारी चीज़ों को वो सारा कुछ करने के लिए, तो जो 3 साल हैं ये 3 साल का अरसा असल में तैयारी में गुजरा है। सो इस तरह कुल मिलाकर ये 30 साल बनते हैं। फिर इसके साथ
ایک اور बात भी इसके बारे में बयान की जाती है कि चूंकि ये अकेला यूसुफ यहाँ पर मुल्क मिस्र में आ गया है, 27 साल इसने गुजार लिए हैं, जो इसका बाप है या इसके बाकी भाई हैं या ख़ानदान के अफराद हैं वो अभी मिस्र में नहीं है। क्योंकि वो नहीं हैं और आपको ये पता है कि वो पहले एक बार अनाज लेने के लिए आते हैं, फिर दूसरी बार अनाज लेने के लिए आते हैं, फिर तीसरी बार कहीं जाकर जो है वो जो सारा ख़ानदान है वो जाकर उसमें मुल्क मिस्र में आते हैं। उन सारी उस स्टोरी से, उस सारे वाक़े से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और इस सारे अरसे में ज़ाहिर सी बात है वो पहले गए हैं, जाकर अनाज खा लिया है, फिर दूसरी बार अनाज लेने के लिए गए हैं और फिर जाकर वो ख़ानदान को लेकर आए हैं। सो यहाँ पर जो अरसा है, कुछ उलमा ये भी बयान करते हैं कि असल में ये वो दौरानिया है जो 3 साल का है और ये कुल मिलाकर जो है वो 30 साल बन जाते हैं। यानी कि जिन मुसन्निफ़ीन ने 430 लिखा है उन्होंने साथ में ये 30 वर्ष भी जो यूसुफ ने वहाँ पर गुजारे हैं इसको भी साथ में मेंशन कर दिया है, इसको साथ में जमा कर लिया है, साथ में शामिल कर लिया है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ 400 साल का कहा है उन्होंने इसमें से ये जो यूसुफ है इसको शामिल नहीं किया, बल्कि जब सब लोग सारे के सारे पूरा ख़ानदान मुल्क मिस्र में आ गया है वो इस बात को बयान करते हैं कि जब सारा ख़ानदान आ गया है और 30 साल पहले वहाँ पर यूसुफ ने गुजार लिए हैं, उनने उस अकेले के उस अरसे को उसका जिक्र नहीं किया, बल्कि जब सारा ख़ानदान वहाँ पर पहुँचा तो 400 साल का अरसा उन्होंने वहाँ पर बयान कर दिया। इस तरह ये मामला क्लियर हो जाता है। और इसके साथ एक जो तीसरी बात यहाँ पर बयान की जाती है वो ये है कि चूँकि उस वक्त भी और आज भी ऐसा होता है कि कई बार जब हम तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और जब सदियों बाद कोई ऐसा वाक़या रूनमा होता है तो उसके हवाले से एक लफ्ज़ हम कह देते हैं कि तकरीबन जी तकरीबन उस वक्त ऐसा हुआ था, तकरीबन इतने साल हो गए, तकरीबन इतनी सदियां हो गई। तो उसमें होता क्या है, अगर फ़र्ज़ करें 100 साल का अरसा है, बयान हम कर देते हैं 100 साल, लेकिन असल में वो 100 होता नहीं है, वो कई बार 105 साल होते हैं या कई बार 95 साल होते हैं, कई बार 5 कम है या 5 ज़्यादा हैं। लेकिन आम तौर पर राउंड फिगर करने के लिए उसे तकरीबन 100 साल लिख दिया जाता है। सो यहाँ पर भी ऐसा है कि इस बात को बयान करने के लिए जो है वो 400 साल का जो अरसा है, इसे राउंड फिगर करने के लिए 400 साल का अरसा जो है वो लिख दिया गया है। और इस बात को भी ज़हन में रखें कि इन दोनों किताबों का मुसन्निफ, पैदाइश की किताब का भी और खरूज की किताब का भी जो मुसन्निफ है वो मुक़द्दस मूसा है। और अगर ये बात या इसमें कोई ऐसी बात होती, चूंकि लिखने वाला एक ही है, सो उसे भी पता था कि पहले पैदाइश की किताब में 400 साल का अरसा लिखा गया है और यहाँ पर खरूज की किताब में मैं 430 का अरसा लिख रहा हूँ। उसे इस बात का पता था कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। बाज़ औक़ात ये बातें हमें परेशान ज़रूर कर देती हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन तहकीक करने पर हमें ये पता चलता है कि हमारे समझने में कोई गलती हो सकती है, लेकिन खुदा का पाक कलाम सच्चा है, बरहक है, अटल है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन तो टल सकता है लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। हमारा खुदा हमें पाक कलाम को पढ़ने की और उसको समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।